Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In the last lecture, we have seen pile accessories, pile cap, how to driven a pile. We have also seen how to load a pile. Now, in today's lecture, we are going to study about the load carrying capacity of the pile and how we can calculate load carrying capacity. So, before seeing a method of determining, we will see what is the load carrying capacity of the pile. So the ultimate load carrying capacity or ultimate bearing capacity or ultimate bearing resistance of a pile, that is called QU. So is the maximum load which can carry without any failure or excessive settlement of a ground, right? So this is called load carrying capacity. So the allowable load, that is QA, on a pile is a safe load which the pile can carry safely, and it is determined, that is ultimate load divided by factor of safety, right? So bearing capacity of the pile किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सॉइल, मेथड ऑफ द इंस्टॉलेशन, length of a pile, cross section of a pile. So these all are factors that depends on a bearing capacity of a pile. So the pile transfers the load to the soil in a two ways, एक तो end bearing और a point bearing and screen friction, right? So ये two ways से pile load transfer करता है. So the resistance offered by a soil at the end of a tip of the pile is termed as a end bearing or a point bearing. So if the strata through which the pile is driven are weak and the tip resting on a hard bearing transfers most part of a load by a end bearing, then the pile is said to be a bearing pile, right? So हमें पता चल गया है कि bearing pile किसको बोलते हैं and skin friction किसको बोलते हैं, right? So the shear resistance on a surface of a pile is termed as a skin friction. Pile in a homogeneous soil transfers the greater part of their load by a screen friction and are called friction piles. So load carrying capacity of the pile can be determined by these following methods. First one is a dynamic formula, second one is a static formula, then pile load test and penetration test. सो पाइल लोड टेस्ट वाला पोर्शन तो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग देखेंगे डायनेमिक फार्मूलाज. सो डायनेमिक फार्मूलाज कौन से है टू फाइंड आउट पाइल ड्रिविंग कैरिंग कैपेसिटी, right? So dynamic pile formula are also useful in estimating a pile capacity. The load carrying capacity of a driven pile can be estimated from the resistance against the penetration developed during the pile driving operation. So this methods gives a fairly good result only in the case of free draining sands and hard clays, so in which high pore water pressure does not develop ड्यूरिंग द ड्राइविंग ऑफ अ पाइल, राइट? तो जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं पाइल का, तब हाई पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा. So in a saturated fire grain soils, high pore water pressure develops during a pile driving operation and the strength of the soil is considerably changed. So methods does not give the reliable result. So ऐसे टाइम पे ये जो methods होती हैं वो reliable results नहीं provide करती. The dynamic methods cannot be used for a submerged in uniform fine sands which may be loose through the become a quick temporary and show much lesser resistance. So the dynamic formula is based on assumptions that a kinetic energy delivered by a hammer during a driving operation is equal to the work done in a penetrating a pile. तो उसका basic formula ये है. So kinetic energy delivered is equal to work done, right? So energy losses includes this due to a elastic compression of a pile. So various dynamic formula are there to find load bearing capacity of the pile. So that are engineering news record formula, Hillis formula and Danish formula, right? So what is engineering record formula? That is also called ENR formula.
ये जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन अ पेनिट्रेशन. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी डिलीवर्ड होती है, WH/H, और वर्क डन कितना होता है, तो R इंटू एस प्लस एनर्जी लॉसेस. तो इसके अंदर W क्या है, वेट ऑफ अ हैमर है जो किलो न्यूटन में आएगा. H है हाइट ऑफ अ फॉल, ये NH है एफिशिएंसी ऑफ हैमर, एंड R है पाइल रेजिस्टेंस. राइट. सो हम लोग सबसे पहला इक्वेशन देख लेंगे, इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड, जिसको ENR भी बोलते हैं. सो द इंजीनियरिंग न्यूज़ फॉर्मूला प्रपोज्ड बाय AM विलिंगटन, एडिटर ऑफ अमेरिकन जर्नल इंजीनियरिंग न्यूज़, is the simplest and most popular dynamic equation. Equation is a QA is equal to WH upon F into S plus C. राइट. तो इसके अंदर QA क्या है, अलावेबल लोड है, वो किस में आएगा, किलो न्यूटन में आएगा. W क्या है, वेट ऑफ द हैमर, अगेन दिस इज ऑल्सो कम्स इन अ किलो न्यूटन. H क्या है, हाइट ऑफ अ फॉल ऑफ हैमर, वो आएगा mm में. फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो वो 6 आती है. S है पेनिट्रेशन पर ब्लो, सो दैट इज टेकन एज अ एवरेज पेनिट्रेशन पर ब्लो फॉर अ लास्ट 5 ब्लोज ऑफ अ ड्रॉप हैमर एंड 20 ब्लोज ऑफ अ स्टीम हैमर. राइट. C क्या है, एम्पेरिकल कांस्टेंट, तो अगेन वो भी 25 mm फॉर अ ड्रॉप हैमर एंड 2.5 mm फॉर अ सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर. So in this equation H, S and C should be in a same units, right? ये जो हम लोग H and C जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो सारे सेम यूनिट में होने चाहिए, मतलब कि mm में रखेंगे हम लोग. Then the unit of a QA will be those of a W, मतलब कि W का जो यूनिट होगा वैसा ही यूनिट होगा QA का, मतलब कि वो होगा किलो न्यूटन में. अब फॉर अ कन्वीनियंस इन अ प्रैक्टिकल यूज हमारे पास फॉर अ ड्रॉप हैमर के लिए इक्वेशन है QA का WH अपॉन 6 इंटू एस प्लस 25. जब सिंगल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर यूज होंगी तब उसका QA का इक्वेशन चेंज होके WH अपॉन 6 इंटू एस प्लस 2.5 हो जाएगा, 25 की जगह पे 2.5 हो जाएगा. एंड जब हम लोग डबल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर यूज करेंगे तब QA का इक्वेशन हो जाएगा W प्लस स्मॉल AP इंटू H डिवाइड बाई 6 इंटू एस प्लस 2.5. राइट. इसके अंदर A क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ अ पिस्टन रहेगा. P क्या रहेगा, मीन इफेक्टिव स्ट्रीम रहेगा, जो होगा हमारा उसका यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर. राइट. तो ये इक्वेशंस थे इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फॉर्मूला, जिसको ENR इक्वेशंस भी बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आएगा हीलीज फॉर्मूला. So Healy gave this formula which takes into account for a various energy losses, and this formula is developed in 1930, and the equation for this formula, that is QU is equal to WH/NH into NB divided by S plus C by 2, जिसमें QU क्या रहेगा, अल्टीमेट लोड ऑन अ पाइल, W क्या रहेगा, वेट ऑफ अ हैमर, H रहेगा हाइट ऑफ अ फॉल, C रहेगा टोटल इलास्टिक कंप्रेशन जो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3. सो टेम्पररी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ अ डॉली एंड पैकिंग, पाइल एंड सॉइल रिस्पेक्टिवली. NH क्या रहेगा, एफिशिएंसी ऑफ अ हैमर. S रहेगा एवरेज सेटलमेंट पर ब्लो. सो ये जो NH की वैल्यू है वो आपके हैमर के अकॉर्डिंगली चेंज होगी. जैसे कि ड्रॉप हैमर होगा तो वो 100% आएगा, सिंगल एक्टिंग हैमर होगा तो NH की वैल्यू 75 से 85 रहेगी, एंड डबल एक्टिंग हैमर होगी तो NH की वैल्यू हो जाएगी 85%. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे डैनिश फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू डैनिश the formula of QU is a W into H into NH divide by S plus S0 divide by 2. सो उसके अंदर S0 क्या है, इलास्टिक कंपेरिशन ऑफ अ पाइल है. अदर नोटेशंस आर सेम एज डिफाइंड अर्लियर, जो आगे हम लोगों ने बताए थे वैसे ही सेम रहेंगे. यहाँ पे L क्या रहेगा, L होगा लेंथ ऑफ अ पाइल. सो यहाँ पे जो S0 की इक्वेशन के अंदर वैल्यू है वो कैसे फाइंड होती है, तो ये इक्वेशन है S0 फाइंड आउट करने का.
W इंटू एच इंटू एल इंटू 2 इंटू न्यू एच डिवाइड बाई ए ई, जिसके अंदर L क्या है तो लेंथ ऑफ द पाइल है, A है एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एंड E रहेगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे क्यू ए फाइंड आउट करने का एक और इक्वेशन है क्यू यू अपॉन एफ, तो यहाँ से क्यू यू मिलेगा और एफ हमारे पास है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 3, तो ये इक्वेशन से हम क्यू यू फाइंड आउट करेंगे, पर क्यू यू फाइंड आउट करने के लिए एस जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इक्वेशन से एस जीरो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्यू यू करेंगे, उसके बाद क्यू ए फाइंड आउट करेंगे, और क्यू ए का इक्वेशन है क्यू यू अपॉन एफ। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस थे हमारे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल फाइंड आउट करने के डायनेमिक फॉर्मूलाज थे। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक फॉर्मूलाज। तो व्हाट इज स्टैटिक फॉर्मूला? स्टैटिक फॉर्मूला क्या है? सो बेसिकली हम लोग जो मैंने आगे बोला था कि लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग मेथड है। तो in a static analysis, the ultimate bearing capacity of the pile is considered to be a sum of the end resistance and end resistance due to a skin friction, right? तो end bearing and skin friction का sum होगा, तो उसका इक्वेशन क्या है? QU is equal to QP plus QS, right? वो इक्वेशन है हमारा QU का। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज डिटरमाइंड बाय, यहाँ पे क्यू की जगह पे आर यूज किया है, राइट? सो आर एफ इज अ टोटल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन एंड आर पी इज अ टोटल अल्टीमेट पॉइंट और एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ पाइल अपॉन विच द स्किन फ्रिक्शन आर एक्ट, और ए पी क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइल ऑन विच बेरिंग रेजिस्टेंस एक्ट, राइट? तो जहाँ पे स्किन फ्रिक्शन एक्ट होता है उसके एरिया को हम लोग बोलते हैं ए एस, और जहाँ पे बेरिंग रेजिस्टेंस एक्ट होता है वो एरिया को बोलेंगे ए पी। आर एफ क्या है? एवरेज स्किन फ्रिक्शन, एंड आर पी है यूनिट पॉइंट और टो रेजिस्टेंस। सो एफ ओ एस हम लोग 2.5 से 3 ले सकते हैं फॉर अ फाइंडिंग अलावेबल लोड। अब ये जो इक्वेशन है वो सॉइल के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। तो जैसे फॉर अ कोहेसिव सॉइल, सो फॉर अ पाइल इन अ कोहेसिव सॉइल, पॉइंट बेरिंग इज जनरली निग्लेक्टेड फॉर अ इंडिविजुअल पाइल एक्शन। द यूनिट स्किन फ्रिक्शन मे बी टेकन इक्वल टू अ shear strength of a soil multiply by reduction factor, that is alpha or m, right? So RF क्या है यहाँ पे? एवरेज स्किन फ्रिक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ अ पाइल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू सी बार भी बोल सकते हैं, एंड आर पी क्या है? तो सी पी एन सी, राइट? तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्यू डी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर पी, दैट मीन्स एम सी बार इंटू ए एस प्लस 9 सी पी ए बी, जिसके अंदर अल्फा और एम क्या है? एडहेजन कोएफिशिएंट है, और उसको रिडक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं, हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन अ टाइप ऑफ अ क्ले। कौन से टाइप की क्ले है उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अब सी बार क्या है? वो है एवरेज अनड्रेन कोहेजन अलोंग द लेंथ ऑफ अ पाइल, एंड सी पी क्या है? एवरेज अनड्रेन कोहेजन ऑफ अ सॉइल एट अ पाइल टिप। अलावेबल लोड फॉर अ पाइल, वो फाइंड आउट करने का इक्वेशन है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू डी बाई एफ, जिसके अंदर f क्या रहेगा? मिनिमम 2.5। इफ द डिफरेंस वैल्यू ऑफ FOS आर अडप्टेड फॉर अ शाफ्ट रेजिस्टेंस और अ स्किन फ्रिक्शन एंड अ बेस रेजिस्टेंस, देन QA का इक्वेशन क्या हो जाएगा? MC बार AS अपॉन F1 प्लस 9CP AP अपॉन F2। फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। RF का इक्वेशन हो जाएगा K इंटू 10 फाइव इंटू वाई जेड प्लस क्यू, एंड आर पी का इक्वेशन हो जाएगा 0.3 गैमा बी इंटू एन गैमा क्यू फॉर अ सर्कुलर पाइल, एंड फॉर अ रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर पाइल अगेन ये आर पी का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, गैमा बी एन गैमा क्यू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जिसके अंदर के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ अ लेटरल अर्थ प्रेशर है, गैमा है यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, क्यू है सरचार्ज ऑन अ ग्राउंड, Z है डेप्थ ऑफ CG ऑफ अ पाइल बिलो द ग्राउंड सरफेस, B है लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑफ अ स्क्वायर पाइल,
फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. एन वाई क्यू क्या है, मेयर्स नॉन डायमेंशनल फैक्टर, दैट इज रिजल्टेंट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फैक्टर. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. ये जो हम लोगों ने देखे डायनेमिक एंड स्टैटिक फॉर्मूलाज, तो उसके ऊपर से एग्जांपल्स है, वो हम लोग एग्जांपल्स लास्ट में देख लेंगे. सबसे पहले हम लोग ये सारी थियोरीज ख़त्म कर देते हैं. तो अब नेक्स्ट थियोरी है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. व्हाट इज़ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन? So negative skin friction is a downward drag acting on a pile due to a downward movement of a surrounding compressible soil relative to the pile. राइट. तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, जो डाउनवर्ड ड्रैग एक्ट होता है पाइल के आजू बाजू में, तो उसकी वजह से जो कंप्रेसिबल सॉइल जो होती है, ठीक है, वो है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. सो इट इज शोन इन अ फिगर. आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनवर्ड मोमेंट में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको नेगेटिव फ्रिक्शन बोलेंगे. सो फिगर शोज द पाइल पासिंग थ्रू अ recently constructed cohesive soil fill, and the soil below the fill is completely consolidated under overburden pressure. So negative skin friction will occur due to the following reasons. कौन से reasons होते हैं? When the surrounding compressible soil has been recently filled, जो उसके बाजू में compressible soils है वो recently अगर fill की गई है तो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है. इफ़ द फील मटीरियल इज़ अ लूज कोहेजन लेस सॉइल, जो फीलिंग का मटीरियल था वो लूज कोहेजन लेस सॉइल होगा तो उसको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एक्ट होगा. बाय लोअरिंग द ग्राउंड वाटर विच इंक्रीजेज द इफेक्टिव स्ट्रेस कॉजिंग अ कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल with resultant settlement and a friction force being developed on a pile, and it also occurs when the fill is over the peat or a soft clay stratum. right, जो फीलिंग किया है वो सॉफ्ट क्ले स्ट्रेटम के अंदर अगर किया होगा तो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है. फॉर अ इंडिविजुअल पाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, तो फॉर कोहेसिव सॉइल उसका इक्वेशन हो जाएगा QNF इज इक्वल टू PCLF, एंड फॉर अ ग्रैन्युअल सॉइल उसका इक्वेशन हो जाएगा QNF इज इक्वल टू 0.5 PLF स्क्वायर गैमा इंटू KF, जिसके अंदर P क्या है, पेरीमीटर ऑफ द पाइल है, LF क्या है, डेप्थ ऑफ द फील है, C क्या है, कोहेशन ऑफ अ सॉइल इन अ जूम ऑफ LF, K है अर्थ प्रेशर ऑफ कोफिशिएंट, गैमा है यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, एंड F है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 10/5. सो व्हेन कंसीडरिंग द FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FS on ultimate bearing capacity of a pile, negative friction must be allowed. So FS का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ultimate bearing capacity of a single or a group pile divided by a working load प्लस नेगेटिव फ्रिक्शन लोड. राइट, उसको वर्किंग लोड प्लस नेगेटिव फ्रिक्शन लोड से प्लस करके डिवाइड करते हैं. अब आगे का टॉपिक है अंडर रिम पाइल. अंडर रिम पाइल किसको बोलते हैं? सो अंडर रिम पाइल्स आर डेवलप्ड बाय CBRI फॉर सर्विंग अ फाउंडेशन फॉर अ ब्लैक कॉटन सॉइल, filled up ground and other type of soil having a poor bearing capacity. right, so an underrim pile is a board cast into concrete pile having a one or a more bulbs or a underrims in its lower portion, and a bulbs or a underrims are formed by a underrimming tool. राइट, उसके अंदर क्या होता है, जो पाइल होती है उसके अंदर बल्ब्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, और ये बल्ब्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अंडर रिमिंग टूल से कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो बेसिकली ये जो अंडर रिम पाइल्स है उसका डायामीटर वैरी होता है 20 से 50 मीटर तक, एंड जो बल्ब का डायामीटर जो होता है वो जो पाइल का डायामीटर होता है उससे 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर होता है, एंड लेंथ ऑफ द अंडर रिम पाइल्स इज अबाउट 3 to 8 मीटर, and the spacing of the piles may vary from 2 to 4 meter. The underrim piles can also be used for a soily soils and a high water table.
The load carrying capacity of underrim piles can be increased by adopting a pile or a larger diameter, or by extending the length of piles, or by making more bulbs at the base. जो बल्ब्स होते हैं हम लोग जो अगर बढ़ा दे तो हम लोग उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं. A single underrim pile has only a one bulb at the bottom. When two or more bulbs are provided at the base, that is known as a multi-bulb underrim pile, right? जो सिंगल बल्ब होता है उसको सिंगल बल्ब बोलते हैं, सिंगल अंडररिम पाइल बोलते हैं. लेकिन नंबर ऑफ बल्ब्स यूज किए गए होते हैं उसको मल्टी बल्ब अंडररिम पाइल बोलते हैं. ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी बोली कि अंडररिम पाइल क्या होता है, कास्ट इन सिटू कॉन्क्रीट पाइल होता है जिसके अंदर वन या मोर देन टू बल्ब प्रोवाइड किए जाते हैं. डायमीटर ऑफ द पाइल 50 से 20 सेंटीमीटर तक का होता है. एंड बल्ब का कितना होता है, 2 to 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बल्ब होता है. लेंथ ऑफ द पाइल होती है 3 to 8 मीटर. एंड स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स कितना होता है, 2 to 4 मीटर. लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो बल्ब को मतलब नंबर ऑफ बल्ब ऐड करके हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ टू बल्ब्स इज वेरिंग फॉर 1.25 to 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बल्ब. And for a black cotton soil the bulb is increased bearing capacity and also provide anchoring against the uplift. ठीक है, तो black cotton soil के अंदर ये most probably use होता है. Construction of underrim piles कैसे होता है, so equipment required for a construction of piles are a spiral auger for boring के लिए चाहिए होता है, underrimmer चाहिए होता है किसके लिए, तो बल्ब बनाने के लिए, एंड बोरिंग गाइड्स चाहिए होता है टू कीप द होल वर्टिकल. सो बोरिंग यूजिंग अ स्पाइरल अगर, सबसे पहले ये अगर को यूज़ करके हम लोग बोरिंग करते हैं. उसके बाद मेकिंग ऑफ अ बल्ब यूजिंग अंडर रैमर, ये जो अंडर रैमर होता है उससे हम लोग बल्ब बनाते हैं नीचे. उसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं. रेनफोर्समेंट प्लेस हो जाने के बाद उसके अंदर कंक्रीट प्लेस होता है. ये जो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, मतलब कि ये जो पाइल फाउंडेशन है उसका पूरा थियोरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. तो थियोरी पोर्शन के अंदर कितने कितने मोस्ट IMP क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए हैं जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है उसके अंदर कितने कितने एग्जाम्पल्स आते हैं जो हम लोगों ने आगे थियोरी फॉर्म में देखे हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स का कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो.